Hi everyone, welcome back to the channel. So you would have seen a lot of videos on YouTube जहां पे आपको बताया जाता है कि आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर का क्या सीटीसी है, बड़े बड़े पैकेजेस हैं, बड़े बड़े सीटीसी कोट किए जाते हैं। और कहीं ना कहीं आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू माइट बी गेटिंग अ फीलिंग दैट बीइंग एन आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर इज ऑल अबाउट अर्निंग लॉट ऑफ मनी, पैसा ही पैसा। तो आई वुड बी थ्रोइंग सम लाइट ऑन दिस। ठीक है, हम काफी चीजों के ऊपर बात करेंगे, मैं अपना ओपिनियन भी दूंगा। सबसे पहले तो यही डिस्कस करेंगे कि आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर को कितना पैसा मिलता है, बिकॉज आई थिंक बीइंग एन एस्पिरेंट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर यू while you go for any exam. But I think even important than that would be in hand kitna milta hai, right? Because this is what you will be able to spend on your life, on your luxury. Then even important would be how much growth you would be getting, right? Salary एक जगह है, but अगर salary 5-10 साल ना बढ़ी जाए तो आई थिंक वो बिल्कुल भी ज्यादा नहीं रहती है। सो आफ्टर 5 to 10 years how much you would be getting, right? And not only salary but what would be your growth in terms of learning, that we would be discussing here. And जो भी आप earn कर रहे हैं, is it going to be sufficient, कि आपके लिए sufficient रहेगा to meet your needs or you can live a luxury life with that? That also we would be discussing here. और साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि आरबीआई में काम करने का मतलब क्या है, to earn money or to something else. तो इस सारी बातों पे डिस्कस करेंगे। उससे पहले I want to show you something really good. So our team has come up with this comprehensive guide for RBI, right, which contains lot of information for you. अगर मैं ब्रीफ में बताऊं तो 3 चीजें जो आपको यहाँ पे बहुत हेल्प कर सकती हैं, which is there in this guidebook, syllabus of RBI Grade B exam, PYQs of RBI Grade B exam, that is previous year questions, and the third is the best sources to prepare for this exam. All this you can get from this guidebook very easily. So don't search for it anywhere and waste your time. Rather download this guidebook and get all this information right now. The link to download this guidebook is given in the description of this video. तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट से शुरू करते हैं। आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर को सैलरी क्या मिलती है? इफ यू सी द नोटिफिकेशन देयर, इट इज वेरी क्लियरली रिटन दैट along with basic pay and some allowances like special allowance, grade allowance, dearness allowance, etc., your basic, your total pay would be 1,16,000 something, right? और HRA उसके अलावा है, right? This is separate. तो अगर मैं इस 1,16,000 या 1,17,000 अप्रोक्सीमेटली को 12 से करता हूं मल्टीप्लाई फॉर माय ईयरली पैकेज, that comes out to be 14 lakhs approx. तो ये तो मुझे in terms of my basic pay and certain basic allowances मिल रहा है, but apart from that पिक्चर अभी बाकी है। यू गेट लॉट ऑफ अदर मंथली अलाउंसेस। फर्स्ट वन इज पेट्रोल अलाउंस, जहां पे आपको मुंबई में 200 लीटर और अदर सिटीज में 180 लीटर तक मिलता है और कुछ सिटीज में 150। सो ओवरऑल पेट्रोल का रेट इतना हो गया, इट वुड बी समवेयर अराउंड 20,000 पर मंथ। हाउस होल्ड अलाउंस फॉर योर मेड्स एंड ऑल 5,000, इंटरनेट अलाउंस फॉर यू 2,000 पर मंथ, देन लैंडलाइन बिल which can be reimbursed up to 1,386। ठीक है, फिगर्स थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती हैं। Then newspaper allowance 917, equipment maintenance allowance for your laptop, phone and all 500, then HRA allowance, a big component 60,000। but यहाँ पे आपको एक चीज नोट करनी पड़ेगी that HRA would be given only if you have not taken the RBI accommodation। अगर आप RBI का accommodation लेंगे तो ये नहीं मिलेगी, और अगर आपने रेंट पे भी लिया हुआ है, इट वुड बी गिवन ऑन द एक्चुअल लीज अमाउंट। सो इफ यू हैव रेंटेड अपार्टमेंट वेयर यू आर गिविंग अ रेंट ऑफ 40,000, देन यू विल गेट ओनली 40,000 एंड नॉट 60,000। Then your children education would also be reimbursed up to 7,000 each for 2 children. I have just assumed कि आपके एक ही बच्चा होने वाला है, right? So that depends upon your choice anyways। तो 7,000 रुपए यहाँ पे आपको चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए मिलेंगे और Sodexo कूपन्स मिलेंगे अराउंड 3,600 पर मंथ। सो ये टोटल 1 लाख पर मंथ बनता है, विच इज अकोमुलेटिव figure of 12 lakhs per year. So you can see कि RBI ही I think एक ऐसा organization है where your allowances are kind of matching your salary, right? पिछली स्लाइड में हमने सैलरी देखा था, it was around 14 lakhs and here you are getting is allowances of 12 lakhs and there are more allowances which are annual allowances. Book grant allowance मिलेगा so that you keep updated yourself by reading new books, which would be 8,000 per year. I hope you read something really quality. Then your medical expenses, again just on declaration you need not give any bill here, 13,000 per year. Then a briefcase allowance may be resonating with the Babu culture where you take your briefcase to the office. That does not happen actually, 6,500 per year. Then furniture allowance which is given up to 2 lakhs
in 5 years, that is 2 lakh divided by 5, 40,000 per year. And again, you need not give any bill for this, right? कि आपको फर्नीचर लेके ही आना पड़ेगा. This is again on declaration basis. Then spectacle allowance, अगर आपके स्पेक्टिकल्स हैं, यू कैन गेट 13,000 पर ईयर, राइट. यहां पे आपको बिल्स देने पड़ेंगे, तो ये सिर्फ बिल बेसिस पे है. देन एलएफसी विच इज आल्सो कॉल्ड एलटीए, लीव ट्रैवल अलाउंस, वेकेशन अलाउंस, 1,24,000 पर पर्सन. तो अगर आपकी वाइफ है उनको भी अलग से मिलेगा, बट आई एम जस्ट काउंटिंग यू आर सिंगल. ठीक है, अगर आप लड़की हैं, आपका हस्बैंड है, उनको भी मिलेगा, बट आई एम जस्ट काउंटिंग यू एज अ सिंगल. मैंने 1,24,000 ही लगाया है. So total becomes 2 lakhs per year. So if I add all this, it kinds of becomes 40 lakh your basic salary plus common allowances, then monthly allowances, and then annual allowances. It kinds of become 28 lakhs per annum. तो एक बड़ा फिगर है जो आपको सब लोग दिखाते हैं, मैंने भी दिखा दिया है. बट इसके आगे देखते हैं क्या रियलिटी है. द सेकेंड पॉइंट, ठीक है, यहां तक तो बहुत अच्छा है, 28 lakhs पर annum मिल रहा है, अच्छा ही है वैसे सब कुछ, घबराइए मत. बट इन हैंड कितना मिलता है, राइट? हियर यू नीड अ गुड क्लैरिटी ऑन दिस. तो देखिए, approximately 28 lakhs per annum, what would be the deductions? First is NPS, 7,000 per month or 10,000 per month would be deducted from your salary. Then tax, आप अच्छा कमा रहे हैं, you would have to give tax of around 15 to 18,000, maybe more, right? That depends how you do your tax planning. So 18 plus 7, 25,000 per month, which becomes 3 lakhs per year. Then spectacle allowance, अगर आपके चश्मे ही नहीं लगे हैं, आई एम श्योर यू कैन नॉट गेट इट रीइंबर्स कि मैं एक कोई बिल ले आया, बिकॉज आपके चश्मे ही नहीं है. तो यहां पे आपको ये 13,000 नहीं मिलेगा. देन लैंडलाइन इज अगेन बेस्ड अपॉन बिल. आपके घर में लैंडलाइन नहीं है तो ये भी आपको 18,000 रुपीज नहीं मिलेंगे पर ईयर. चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, अगर आपके बच्चे ही नहीं है फॉर सम इयर्स, राइट, वैसे कुछ लोग इसमें भी बिलीव करते हैं, डबल इनकम नो किड्स नोन एज डिंक. तो अगर आप उनमें से हैं, मे बी, ठीक है, तो आपके बच्चे नहीं है तो आपको ये 7,000 इंटू 12, 84,000 नहीं मिलेगा. अब बच्चे नहीं है तो एजुकेशन अलाउंस कहां से मिलेगा. देन एचआरए, राइट, इफ यू हैव टेकन आरबीआई अकोमोडेशन देन अगेन यू विल नॉट गेट दिस एचआरए, तो ये भी आपको नहीं मिलेगा. तो ये कुछ चीजें हैं विच इन वेरियस सिनेरियोज माइट नॉट be given to you. So we will take a worst case scenario कि मेरे बच्चे भी नहीं है, मैं RBI accommodation में रह रहा हूँ, लैंडलाइन स्पेक्टेकल कुछ नहीं है. So if I do a sum of all this, it would kind of becomes 11 lakhs and the major component being HRA. तो अगर मैं यहाँ से 11 लाख निकाल दूं तो इन हैंड मुझे अराउंड 17 लाख आ रहा है, which is around 1.5 lakh per month, which is really good actually, because ठीक है, एकदम स्लैश हो गया है, 28 लाख से 1.5 लाख पे आ गया है, बट यू जस्ट इमेजिन उसमें से फिर भी आपका काफी पैसा एनपीएस में सेव हो रहा है और आरबीआई अलग से डाल रही है 7,000. ठीक है, टैक्स आपको देना ही देना है. आपने आरबीआई का अकोमोडेशन ले लिया है फॉर विच यू आर नॉट गेटिंग एन एचआरए, बट आपके एक्सपेंसेस कितने कम हो जाएंगे, बिकॉज यू डोंट हैव टू पे एनी रेंट, बिकॉज रेंट इज वन ऑफ द मेजर एक्सपेंस इन सिटीज लाइक मुंबई एंड दिल्ली. तो 17 लाख मिल रहा है, रेंट नहीं है, बच्चों की एजुकेशन का कोई डर नहीं है, सेविंग भी हो रही है एनपीएस में, टैक्स भी बीच में से कट रहा है. दैट्स गुड, दैट्स आफ्टर टैक्स इनकम यू आर गेटिंग. ठीक है, तो रियल पिक्चर की भी बात करें, इट्स नॉट बैड, इट्स नॉट बैड, आई वुड से इट्स रियली गुड एज अ स्टार्टिंग पॉइंट इन योर करियर. बट इवन मोर इंपॉर्टेंट I would be getting in RBI. ये I think is also one of the important thing that you need to learn कि 5 साल बाद कितना मिलेगा. ठीक है, ठीक है, तो 5 साल बाद कितना मिलेगा आपको, इसकी अगर बात करें तो देखिए, आरबीआई जो आपको इंक्रीमेंट देता है, एवरी ईयर योर बेसिक विल इंक्रीज. आपका एक बेसिक सैलरी है जो इंक्रीज होगा, राइट. देन योर डीए विल इंक्रीज एवरी ईयर. Then after every 5 years you get an wage revision. So if we take everything into account here, wage revision after 5 years, your DA, जिसको महंगाई भत्ता भी बोलते हैं, dearness allowance will increase every year and your basic pay will increase every year. So ये कहीं ना कहीं जो हम 28 lakhs कोट कर रहे हैं, this will kind of become 42 to 43 lakhs after 5 years. ठीक है, ये भी एक वर्स्ट केस सिनेरियो. यू नेवर नो दैट देयर इज अ वेरी स्ट्रांग वेज रिवीजन केस जिसमें इन्फ्लेशन बहुत आई है और वेज रिवीजन बहुत हो गया है.
बट ठीक है, आई थिंक इतना बनता है, दिस इज नॉट समथिंग रियली हाई यार। 5 साल में 28 से 43 इज समथिंग लाइक 1.5 आपकी सैलरी हो रही है, तो इतना तो इन्फ्लेशन भी है। सो दिस इज नॉट रियली ग्रेट एन इंक्रीमेंट आई वुड से, बट ठीक है, क्योंकि 7th ईयर में जाके आपको प्रमोशन भी ड्यू हो जाएगा। इफ यू गेट दैट प्रमोशन देन एक अच्छा इंक्रीमेंट मिलेगा विच वुड बी good, right? So after 7 years maybe you will reach that magic figure of 50 lakhs after 7 years if you start today. So overall it's good I think, ठीक है, बट इसको मैं नहीं प्रोजेक्ट करूंगा कि बहुत बहुत ज्यादा सैलरी होगी है 28 लाख से 45 लाख या 50 लाख, बिकॉज दैट इज जस्ट कवरिंग द इन्फ्लेशन इन माय पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ नेक्स्ट पॉइंट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है राइट इस वीडियो का, क्या इतना सफिशिएंट रहेगा? देखिए, टू स्टार्ट विद 28 lakhs और 50 lakhs आफ्टर 7 years you can meet all your basic needs. जो भी आपकी बेसिक नीड्स हैं, टू हैव अ गुड हाउस, टू हैव अ गुड कार, टू हैव अ लिटिल बिट लग्जरी लाइफस्टाइल, डजंट मीन कि यार मतलब 20-20 हजार की शर्ट्स पहन रहे हैं, बट टू हैव गुड क्लोथ्स, टू हैव डिनर एट गुड प्लेसेस ऑन वीकेंड्स, यू विल बी एबल टू नो डू ऑल दैट, ठीक है। बट पैसे की कोई आई थिंक सीमा नहीं होती है, द मोर यू अर्न द मोर यू क्रेव फॉर इट, बट ट्रस्ट मी, money is the most important thing in life, but only till a point, and especially it is important till the time you haven't have any, ठीक है। उसके बाद आई थिंक उसका जो मार्जिनल वैल्यू इट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। सो याद रखना, सो अगर आपको पैसे से किक मिलता है कि मुझे बहुत पैसा चाहिए, आई वांट टू अर्न इन करोड्स, आरबीआई इज नॉट द राइट प्लेस फॉर यू। आरबीआई इज नॉट द राइट प्लेस फॉर यू। अगर आपको लगता है मुझे बड़ा बंगलो चाहिए, बहुत बड़ी कार चाहिए, बहुत बड़ा कैबिन चाहिए, RBI is not the right place for you. So RBI is not something which means paisa hi paisa. Rather, I would say you should join RBI if you get that kick from job fulfillment. Because the work that you would be doing there might become a headline tomorrow in the newspapers. That is what kind of satisfaction you might be getting there. Respect. I always feel that RBI Grade B officers are kind of IAS officers of the banking sector. आपको बहुत रिस्पेक्ट मिलेगा, especially in the banking sector, and even if you see you would be able to represent RBI at an international level, say foreign delegation से आप मीट कर रहे हैं, foreign travel कर रहे हैं, there also you will get a lot of respect. Third is वर्क लाइफ बैलेंस। ये चीज ऐसी है जो आप अभी रियलाइज नहीं करेंगे, लेकिन व्हेन यू आर से 35-40 आप इसी चीज के लिए मरेंगे कि आई नीड वर्क लाइफ बैलेंस, वेयर एट 6 o'clock आई नो दैट एवरीथिंग इज फिनिश्ड, आई हैव टू गो टू होम, और वीकेंड्स मेरे सुकून से निकलेंगे। That work-life balance is something extraordinary. And the last thing I would say is job security. Again, when you are in an organization, in any sector, you kind of become unwanted, because you are low on learning new skills as you become old. But when you are in an organization like RBI, it will take care that you're trained on every aspect. और कहीं ना कहीं अगर आप ट्रेन नहीं भी हो रहे हैं, यू स्टिल हैव दैट जॉब सिक्योरिटी, पर आप ऐसा नहीं करेंगे। आई नो देयर इज अ वेरी गुड पीयर ग्रुप हु विल पुश यू टू वर्क हार्ड एंड प्रूव योरसेल्फ और प्रूव योर वर्थ, बट अल्टीमेट जॉब सिक्योरिटी है भाई, ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। आपको पता है कि आई एम इनटू आरबीआई एंड आई एम गोइंग टू रिटायर फ्रॉम हियर नो मैटर व्हाट, दैट इज व्हाट यू नीड। प्राइवेटाइजेशन भी नहीं हो सकता आरबीआई का तो, बिकॉज इट्स अ रेगुलेटरी बॉडी। सो व्हाट एल्स यू नीड, ठीक है। बट ये चीज याद रखना कि अगर सिर्फ पैसा चाहिए, आरबीआई इज नॉट द प्लेस फॉर यू। पैसे की किक यहां काम नहीं करेगी, यहां किक काम करेगी दूसरी चीजों की, जॉब फुलफिलमेंट की, रिस्पेक्ट की, वर्क लाइफ बैलेंस की, जॉब सिक्योरिटी की, लर्निंग की। सो दैट्स ऑल माय फ्रेंड। अभी आप मुझे कमेंट करके बताइए इस वीडियो के नीचे, व्हाट काइंड ऑफ किक यू प्रेफर इन लाइफ, किक ऑफ मनी और किक ऑफ ह्यूज मनी, और किक ऑफ रिस्पेक्ट, किक ऑफ जॉब फुलफिलमेंट, किक ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस एंड kick off job security. So that's all from my end. I will look forward to your comments. What is your view on this? Bye bye. Have a nice day. Jai Hind.